Hello, Matjum, you're watching Morning Pulse on Bill TV. AIADMK candidate Sundar C has criticized the current administration in Madurai Central, alleging poor sanitation, inadequate infrastructure and severe traffic issues. He claimed garbage remains uncleared and drainage system water is mixing with drinking water. Sundar C also promised that with support from the leader Idabari K. Palaniswamy and the centre, a metro project will be brought to Madurai. You can see how the area is functioning now under the present government and the present MLA who happen to be the minister also. You can see the garbage by yourself. This is the school, and in front of the school, this is the way. This is the state of the constituency now. This is state of the constituency now. Everywhere you can see garbage, uncleared garbage, and garbage water running all over the city. All over drainage water is running all over the city, not over the streets, is entering the houses also, and it's mixing with the drinking water also. So this is the basic problem the Madurai Central Constituency is facing. Uncleared garbages, drainage water everywhere, and roads in such a bad states. And so many, not even basic infrastructure was done properly in the last 5 years. And central government is allotting so much of funds, and unnecessarily our state government fighting with the central government, and lot of funds which was supposed to be given to Tamil Nadu government because of the inability of the state government is going nowhere. Yeah. Apart from sanitation and infrastructure, what are the main core issues for you in this election? Apart from the infrastructure and sanitation, the traffic system is very bad here, and Madurai has one of the biggest, most heritage cultural temple in India, not only in India, in the world wise, Madurai Meenakshi Amman temple. And developing the infrastructure around the temple and in the temple will bring in thousands of crore GDP to Madurai city. It will benefit not only Madurai city, it will benefit all over Tamil Nadu. But the state government is doing nothing to develop the conditions all around the Meenakshi Amman temple. The tourists and the people who are coming to worship Meenakshi Amman don't even have the basic facilities like parking facilities or some proper toilet facilities. Nothing is there. So if we develop the infrastructure around the Meenakshi Amman temple, it alone will bring in thousands of crores of GDP to Madurai city. That directly involves lot of working opportunity for the youngsters here and lot of business opportunities for the people of Madurai. So these are all the main thing. And we have to develop the infrastructure for the traffic also. And with the cooperation of the central government, definitely our leader, Mr. Idabari Palaniswamy ji, will bring in metro also to Madurai, which we are very hopeful of. Yeah. Speaking at the public meeting, Rahul Gandhi accused Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah of misleading the nation over the Women's Reservation Bill. He alleged that the move was aimed at altering the electoral map and reducing representation of southern, northeastern and smaller states, calling it an attack on the constitution. Yesterday, you might have seen what Mr. Narendra Modi and Amit Shah were trying to do in Parliament. நேற்றைய தினம் நாடாளுமன்றத்தில் நரேந்திர மோடி அவர்களும் அமித்ஷா அவர்களும் மறு வரைவு சட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள். அது என்ன நடந்தது? நேற்றை அது முறியடிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. They told the nation a lie. அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த தேசம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று. They said they were trying to pass a bill for women's representation. அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நாடாளுமன்றத்திலே பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை நாங்கள் கொண்டு வருகிறோம், அதை ஏற்படுத்த போகிறோம் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். But hidden behind that bill was a diabolical idea. உண்மை என்னவென்றால் இவர்கள் உண்மையை பழி தோண்டி குழி தோண்டி புதைக்க பார்க்கிறார்கள். They wanted to change the electoral map of India.
அவர்கள் தேர்தலுக்கான வரைபடத்தை அமைக்க துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். They wanted to change the number of seats that each state gets. தொகுதிகளுக்கான மாநிலங்களுக்கான தொகுதியை அவர்கள் மாற்றி அமைக்க நினைக்கிறார்கள். They wanted to weaken the South Indian states, weaken the northeastern states, and weaken smaller states. தமிழ்நாடை சீரழிக்க பார்க்கிறார்கள், ஒடுக்க பார்க்கிறார்கள். வடகிழக்கு மாநிலங்களை ஒடுக்க பார்க்கிறார்கள், தொகுதிகளை குறைக்க பார்க்கிறார்கள். You have already seen the Prime Minister attacking our constitution. நரேந்திர மோடி ஏற்கனவே இந்திய அரசியலமைப்பு Reacting to the Constitution 131st Amendment Bill failing in the Lok Sabha, Chalawadi Narayaswamy said that the BJP does not see it as defeat, blaming Congress and the India Alliance for blocking the Women's Reservation Bill. He alleged the opposition is against giving opportunities to women and asserted that the Modi government will reintroduce the bill, expressing confidence that women will eventually secure equal representation. It is not a fail. Congress party and its allies jointly defeated this bill. It is obvious when Baba Saheb Ambedkar moved a Hindu code bill to give an opportunity to the women of this country, then and there itself the Congress party is opposed. That is the mindset of the Congress party. Still it is continued. Not only Congress, the India Alliance, brothers of the India Alliance are totally against the sisters of the same alliance. They don't want to give any opportunities to women because they will be in trouble, most probably. That is the one thing. The next one, see, they are also equals in the society. Women should be given the equal opportunity and power and participation in all the activities which men is also constitutionally do the things. The third one is Congress is against to that. Now it shows. Even 60-65 years they have ruled the country, but they have also tried in the between of their power to show that we are for women, but in their heart it was not there. It has shown now. Why? Because Modi ji moved the bill. We know we have no 2/3 majority. Okay. So believing in India Alliance, it is a social cause. Women should be given equal rights. So that we thought they may not go against this bill. But this defeat is not defeat of the Modi government. This is they all jointly defeated the women's bill because they are against the women of this country. Modi ji will not sit quiet now. We are definitely move this in future also. We will give the equal opportunity and in all sectors to women. So we will bring this bill even after this, and court is also looking at all these acts, and court will also interfere in this matter in future. So women will get their share of power equally in this country.
Smriti Irani launched a sharp attack on the Congress, accusing it of betraying women by opposing the Women's Reservation Bill. She alleged that Congress celebrated blocking women political rights and questioned its commitment while highlighting BJP-led initiatives for women's empowerment. Irani also accused the party of hypocrisy over its stand on delimitation and said women across the country will remember this. देश की महिलाओं को यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने सृजित किया एक ऐसा सपना जो महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने की मंशा रखता है। 98 साल उस मंशा का क्या हश्र हुआ है, वो कल देश की संसद में देश भर की महिलाओं ने देखा। कांग्रेस पार्टी इठिलाई, मुस्कुराई, उसने मेज थपथपाई। इस बात का उन्होंने राजनीतिक जश्न मनाया कि उन्होंने देश की साधारण महिला के राजनीतिक आकांक्षाओं को कुचला। कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक दलों ने इस बात का उत्सव मनाया कि इस देश के वर्षों से चली आ रही संघर्षशील राजनीतिक महिलाएं, जो मात्र 33% का अधिकार संसद में मांग रही थी, उन महिलाओं को कैसे मर्यादाएं तोड़कर उनके अधिकार से वंचित रखा जाए। सत्ता का संघर्ष, संसद का संघर्ष कैसे जीता जाए, उस जश्न में कांग्रेस और उसके समर्थक दल अपने आप को समर्पित कर रहे थे। लेकिन भाजपा के लिए सत्ता का संघर्ष नहीं, समानता का अधिकार देने का प्रश्न था। आज कांग्रेस की प्रेस वार्ता में कटाक्ष किया गया कि भाजपा में कुछ लोगों ने मसीहा बनने का प्रयास किया। ये उस सामंतवादी सोच की निशानी है जिन्हें लगता है कि लोकतंत्र में अगर किसी भी नागरिक को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाया जाए तो वो संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने वाला कोई मसीहा ही होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रेस वार्ता में इस बात का उल्लेख हुआ कि महिलाएं याद रखेंगी। ये सत्य है, महिलाएं याद रखेंगी कि जब 6 दशक तक कांग्रेस के पास सत्ता थी तो 11 करोड़ महिलाएं इस देश में एक शौचालय से वंचित थीं। महिलाएं याद रखेंगी कि जब कांग्रेस की सत्ता रही तो ट्रिपल तलाक एक अभिशाप बनकर मुस्लिम महिलाओं के सर पर मंडराता रहा, उनके सपनों का संहार करता रहा। महिलाएं याद रखेंगी कि 25 करोड़ महिलाओं को बैंक का खाता खोलने में कांग्रेस की सरकार ने कभी समर्थन नहीं दिया, कभी सुविधा नहीं दी। इस देश की महिलाएं याद रखेंगी कि 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को कभी भी कांग्रेस के कार्यकाल में आयुष्मान भारत का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। इस देश की महिलाएं याद रखेंगी कि भाजपा ने एनडीए की सरकार में पहली बार जेंडर बजट की व्यवस्था हुई, कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं। और देश की महिलाएं ये भी याद रखेंगी कि 33% आरक्षण का बिल भाजपा ने एनडीए की सरकार ने दोनों सदनों में पास किया और कांग्रेस की मंशा 98 साल सपना दिखाना, जब सत्ता होना तब उस सत्ता का सदुपयोग करके महिलाओं को आरक्षण ना दिलवाना,
बल्कि लोकसभा में यूपीए के कार्यकाल में उस बिल को लैप्स कराना। मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस की प्रेस वार्ता में यह कहा गया कि वो 2023 के पारित बिल का समर्थन करते हैं जिसमें डीलिमिटेशन का उल्लेख है, लेकिन दोगलापन कांग्रेस का इतना कि साथ में ये भी कहते हैं कि उन्हें परिसीमन की समिति और व्यवस्था में विश्वास नहीं। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं, देश की संसद में विश्वास नहीं और देश की महिला पर भी विश्वास नहीं। ये कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया। Chirag Paswan defended the Constitution 131st Amendment Bill, calling it a fair proposal with equal seat distribution for all states. He accused the opposition of deliberately blocking the bill and denying women their rights, expressing confidence that women voters will respond strongly in the future. इस बिल को लाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस पर हमने भाई डीलिमिटेशन की आड़ का क्या मतलब है बताएं ना मुझे। और मैं ये बात अगर कोई भी व्यक्ति जिसने इसको पढ़ा होगा और अगर वो समझता होगा तो उनको ये समझने की जरूरत है कि इससे बेहतर प्रपोजल इवन फॉर डीलिमिटेशन ऑल्सो नहीं आ सकता है। अगर आप सेंसस के आधार पर अगर आप करने की बात करते 2011 के सेंसस के आधार पर अगर हम लोग डीलिमिटेशन करते या अब जो सेंसस होगा उसके आधार पर जो चिंताएं हैं सदर्न स्टेट्स की वो बिल्कुल सही रहती। ऐसे में उनको कहीं ना कहीं सीटों का नुकसान ही होता। बट जो प्रपोजल हमारे द्वारा डीलिमिटेशन को लेके दिया गया था जहां पे हर राज्य को इक्वल शेयर मिल रहा था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, जहां पे 50% मौजूदा जितनी सीटें हैं हर राज्य की उसका 50% इंक्रीज करके हम लोग दे रहे थे। इसमें किसी राज्य को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आज की भी तारीख में जिस भी राज्य का जितना भी परसेंटेज है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा वो शेयर उतना का उतना ही रहता। और कल गृह मंत्री जी ने अपने संबोधन में आंकड़ों के साथ इस बात को बताने का प्रयास किया। साथ ही में ये चिंता हम सब की है, भैया हम लोग भी सांसद हैं और जितने भी सांसद हैं जो लोग विरोध भी कर रहे हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि आपके लोकसभा क्षेत्र में जितनी आबादी है आज की तारीख में, मैं भी जिस क्षेत्र से आता हूं विद अ पॉपुलेशन ऑफ 2.5 मिलियन प्लस पीपल, तो ऐसे में इतनी बड़ी आबादी का ध्यान रखना एक सांसद के लिए नहीं संभव होता। और जिस तरीके से डिफरेंसेस है, कहीं पे बहुत बड़ी आबादी है, कहीं पे मात्र 1 लाख से नीचे के लोगों की आबादी है, तो ऐसे में उसको भी कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इन तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए डिलिमिटेशन की सोच को लेकर आए। आप बताइए ना इसमें कहां आपको गलती दिख रही है। पर दिक्कत यह है कि विपक्ष डीलिमिटेशन की आड़ में नहीं, डीलिमिटेशन की आड़ में विपक्ष ने इस कानून को रिजेक्ट करने का काम किया। दशकों से लगभग 3-4 दशक होने को आए हैं, बार बार ये पार्लियामेंट आता और बार बार यही दल हैं, गिने चुने दल हैं, यही बार बार इसका विरोध कर कर इसको पास नहीं होने देते, इसको लागू नहीं होने देते। हकीकत में तथाकथित इंडिया अलायंस बेसिकली ये एंटी विमेन अलायंस है। इनमें से कोई नहीं चाहता कि आधी आबादी को उनका हक अधिकार मिले। आज की तारीख में जिस सकारात्मक परिस्थितियों के बीच इसको लाया जा रहा था, कहीं ना कहीं आधी आबादी की उम्मीदें थी कि इस बार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कहीं ना कहीं ये पारित होने जा रहा है। पर उसके बावजूद डीलिमिटेशन को कभी ये लोग आधार बना देते हैं, कभी रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन को आधार बना देते हैं। वन आफ्टर दी अदर किसी ना किसी बहाने से इस बिल को पारित नहीं होने देना। हैविंग सेड इट ऑल, आई थिंक आज की तारीख में देश की आधी आबादी की हर महिला ने इसको देखा होगा, इस सत्र को सुना होगा, हर किसी के संबोधन को सुना होगा। आने वाले समय में जरूर विपक्ष को जवाब देने का काम वो करेंगे। Kiran Rijiju expressed disappointment over the failure of the Constitution 131st Amendment Bill, blaming Congress and opposition parties for blocking women's reservation. He said that the move has denied women greater participation in governance and termed it as a setback for women's empowerment, while asserting what the government remains committed to ensuring their rights. कल जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डीलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल जो पारित नहीं हुआ, उसके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं, राजनीति से प्रेरित होकर के और महिलाओं को अधिकार नहीं देने का मानसिकता लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो पारित नहीं होने दिया 2/3 मेजोरिटी से, उससे हम लोग सब दुखी हैं। ये सिर्फ सरकार के लिए दुखी है और ये सरकार को, हमारे पार्टी को नुकसान हुआ ये नहीं है। हम दुखी इसलिए कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है। देश के महिलाओं को अपना पूरा कानूनी प्रक्रिया, देश का बागडोर करने में, देश को संचालन करने में जो निर्णय होते हैं, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी देने के लिए लोकसभा में और विधानसभाओं में जगह देने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम था वो पारित नहीं हो पाया, इसलिए हम दुखी हैं। ये इसको सरकार का फेलियर, हमारा पार्टी का फेलियर बिल्कुल नहीं मानना है। ये देश के ऊपर में बहुत बड़ा आघात कांग्रेस पार्टी और कुछ दलों ने पहुंचाया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं का आक्रोश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए इसको हमारा सरकार पार्टी का विफलता मत समझे और महिलाओं को अधिकार नहीं दे करके सेलिब्रेशन करना ये तो घोर पाप है। कोई आपने पार्टी दुनिया में देखा है क्या? महिलाओं को अधिकार नहीं देने का फैसला करके और उसको वो जीत मानते हैं। महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और असेंबलीज में ये हम सबका दायित्व है, उसको देना है। और उसको नहीं देने का कांग्रेस का मानसिकता और उस बिल को गिरा करके फिर जश्न मना रहे हैं, इससे बड़ा महिला विरोधी मानसिकता कैसे आप दर्शा सकते हैं? यही पूर्ण रूप से अपना छवि को इन्होंने दिखा दिया है। बहानाबाजी नहीं चलेगा, अलग अलग बहाना नहीं चलेगा। सीधा सीधी बात है, महिलाओं को जो अधिकार देना चाहिए उसको कांग्रेस और उसके साथियों ने गिराया है। तो हमारे लिए क्या, हम तो सरकार में है ही, हम तो चुन के आए हैं। लोगों ने वोट दिया मोदी जी के नेतृत्व में, हमको तीसरी बार जनादेश देकर के सत्ता में बिठाया है। तो सरकार तो है, दुखी इसलिए कि महिलाओं को अपना अधिकार नहीं मिला। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को आप लोग भी बताना है, जश्न मनाने का जरूरत नहीं है। ये तो पाप काम किया है, महिलाओं को अधिकार नहीं देकर के जश्न मना रहे, ये तो शर्मनाक बात है। इसलिए ये जो बजट सेशन है बहुत सक्सेसफुल बजट सेशन रहा है। बस महिलाओं का अधिकार देने में असमर्थ रहा है। हमने कल पार्लियामेंट में भी कहा है कि महिलाओं को जो इज्जत, सम्मान और महिलाओं के लिए जो उत्थान देने वाला काम मोदी जी ने जो किया है कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन ये हम आगे भी करते रहेंगे। मोदी जी ने कहा है कि उनके महिलाओं के प्रति जो उनके सोच, उसका सम्मान देने का जो अभियान है, ये पहले से भी और ताकत होकर के हम लोग आगे काम करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि पूरा प्रयास किया हम लोगों ने, महिलाओं का अधिकार मिले, पूरा ताकत लगाया। अब ये कांग्रेस और उसके साथी जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको हम मारपीट करके जबरदस्ती तो वोट डलवा नहीं सकते हैं। उनका सोच ही महिला विरोधी है, तो हम उनको जबरदस्ती फिजिकली पकड़ के तो वोट नहीं डालवा सकते। तो हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हमने वोट डाला, उसका समर्थन मांगा। बार बार मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से, कांग्रेस के नेताओं से बार बार बात किया। वो सिर्फ चिट्ठी लिखता है, मीटिंग में आते नहीं है। बाकी पार्टी लोग सब आए मीटिंग में, गृह मंत्री जी, मैं, हमारा कानून मंत्री अर्जुन जी, कितने बार हम लोगों ने मीटिंग किया, सबसे मीटिंग किया, और कांग्रेस पार्टी सामने में आते नहीं है। और फिर बोलता है कि चर्चा नहीं होते, सामने में नहीं आता है, चिट्ठी लिखता 3 बार, फिर बोलता है कि चर्चा नहीं करते। तो इस तरह का जो महिला विरोधी जो सोच है कांग्रेस पार्टी, वो तो देश का सामने में उजागर हो गया है। अफसोस की बात है, उसको तो महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा कांग्रेस को, लेकिन हम लोग तो अपना प्रयास है निरंतर भविष्य में हम लोग करते रहेंगे। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.